Hello dear students, in this video we are going to learn about how to convert galvanometer into voltmeter and ammeter. So here, what is galvanometer? First of all, we must be aware of it. Galvanometer, it is a device which is used to detect current. Simple सी बात, in the circuit, the galvanometer can be represented by this symbol that you will place G in a circle. This is your galvanometer. Obviously, this galvanometer can be converted into ammeter and voltmeter. We can say ammeter and voltmeter as galvanometer also, because both voltmeter and ammeter are used to detect current. So here we are having galvanometer and it will have some resistance. So we are going to consider G as its resistance, the resistance of galvanometer. So how we are going to convert galvanometer into ammeter? We'll learn first this and then we will learn how galvanometer can be converted into voltmeter. So first is conversion of galvanometer into ammeter. As we know that ammeter is always connected in, suppose this is a simple circuit, and in this circuit, if I want to detect current or I want to measure current, I have to place a ammeter in series. If a ammeter is placed in series in the circuit, then it will also have some resistance. Obviously, it is a conducting device, so it will be made from the conductor, and conductor have some resistance. So suppose if the resistance of this resistor is 10 ohm and the battery of 10 volt is connected, then ammeter must give me the reading of 10 by 10, that is 1 ampere. But if we connect this ammeter, it should also have some resistance, and suppose it is having a very small resistance of 2 ohm. Now, after connecting the ammeter, the reading of current flowing in the circuit will change. How it will change? I will be equal to V upon 10, V upon R. V is equal to 10, R is 10 plus 2. So the value will be 10 upon 12. It means 5 by 6, which is less than 1 volt, 1 ampere. And if it is less than 1 ampere, it means that this ammeter is not going to give me the exact reading what the circuit is having. According to mathematical calculation, it must have a reading of 1 ampere. But after connecting the ammeter in the circuit, it will give me the reading of 5 by 6 due to its own resistance. So ammeter is a device which is used to measure current through a circuit element. To measure current through a circuit, an ammeter is always connected in series, as we can see in this diagram. With that, the current which is to be measured actually pass through it. The current will pass through it in order to ensure that its insertion in the circuit does not change the current. अब मैं क्या चाहता हूँ कि after inserting the ammeter, it should not change my current. मतलब after insertion also it must give me the reading of 1 ampere. So for having a 1 ampere of current and the ammeter must also measure 1 ampere, this ammeter should have negligible resistance or zero resistance. So for ideal ammeter, the resistance of ammeter must be zero. ये जीरो होना चाहिए. अगर ये जीरो हो गया रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये यहाँ पर हमारा 0 ओम हो जाएगा, और 0 ओम हो जाएगा तो ये एमीटर मुझे कितनी रीडिंग दे रहा होगा? 10 by 10 की रीडिंग दे रहा होगा. तो सिंपल सी बात ये कि अगर मुझे चाहिए कि ये जो मेरा एमीटर है, ये एमीटर मुझे एग्जैक्ट रीडिंग दे, तो उसके लिए इट शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस. आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, बट जीरो तो हो नहीं सकता. तो सिंपल सी बात, हम क्या काम करने की कोशिश करेंगे? वी विल मिनिमाइज द रेजिस्टेंस टू नेग्लिजिबल वैल्यू, दैट इज 0.00001 ओम
इस तरीके का अगर रेजिस्टेंस होगा तो जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द करंट व्हिच इज एक्चुअली फ्लोइंग इन दिस सर्किट irrespective of while connecting the ammeter you are connecting the ammeter or not. तो सिंपल सी बात, मेरे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, एक एमीटर, मैंने आपको पहले ही बताया एमीटर इज जस्ट अ गैल्वेनोमीटर। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर को मैं एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो ऑब्वियस ही बात है इसके पास जी ओम का रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसके पास जी ओम का रेजिस्टेंस होगा, मैं चाहता हूं कि इसके रेजिस्टेंस को बिल्कुल पूरी तरीके से मैं मिनिमाइज कर दूं। मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, हमारे पास दो ही तरीके बचते हैं, either I must connect the resistance in series or I must connect the resistance in parallel. If I'll connect a very small amount of resistance, that is 0.00001 ohm, तो ऑब्वियस ही बात है इस पूरे ओवरऑल गैल्वेनोमीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, इस 0.0001 ओम से भी छोटी वैल्यू आएगी। तो सिंपल सी बात कि अगर मुझे इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू प्लेस अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ताकि इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए। इसके रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके पैरेलल में इसी गैल्वेनोमीटर के, क्योंकि अभी ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर भी मुझे करंट डिटेक्ट करके दे सकता था, लेकिन ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसका जो जी ओम का रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम हो जाए। तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी। अगर मैं इसको पैरेलल में बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस छोटी वैल्यू से भी छोटा आएगा, मतलब वो बिल्कुल ही कैसा होगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होगा। तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें इस तरीके का सर्किट बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने क्या काम किया, दिस वाज द गैल्वेनोमीटर, और हमने यहां पर एक रेजिस्टेंस प्लेस कर दिया जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस एस इज बेसिकली कॉल्ड एज शंट। शंट का मतलब क्या है, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको हम बोलते हैं शंट, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, इसी चीज को हम शंट बोला करते हैं। तो सिंपल सी बात, आपसे पूछे व्हाट इज शंट, तो अगर आप कोई भी सर्किट है, उस सर्किट के अगर पैरेलल में बहुत ही स्मॉल अमाउंट का अगर आप रेजिस्टेंस प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने उसको शंटिंग कर दी उसकी। शंट क्यों यूज करते हैं, शंट यूज करने के तीन रीजन हैं। सबसे पहले ये गैल्वेनोमीटर को डैमेज होने से बचाएगा, जो भी लार्ज करंट होगा उससे। दूसरा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता है। तीसरी चीज, ये हमारी रेंज को इंक्रीज करेगा, किसकी रेंज को, एमीटर की रेंज को। मतलब पहले जो हमारा गैल्वेनोमीटर होगा वो मुझे सिर्फ कुछ रेंज तक रीडिंग दे रहा होगा, जैसे कि 0 से लेकर 10 एम्पियर तक। अगर मुझे इसकी रेंज बढ़ानी है, उसी सेम गैल्वेनोमीटर की, अगर मुझे उसी सेम एमीटर की अगर मुझे रेंज बढ़ानी है कि मैं चाहता हूं कि करंट मेरा 0 से 50 एम्पियर तक मेजर करे, तो हम उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम शंट का यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कि अभी अगर सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर होता तो गैल्वेनोमीटर एक कुछ अमाउंट का ही करंट मेजर कर पाता, और वो करंट सपोज हमारे पास आई होता। तो सिंपल सी बात, इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई 0 से आई। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर शंटिंग की, इसकी रेंज बढ़ गई, इसकी रेंज क्या हो गई, कैपिटल आई हो गई। तो व्हाट इज दिस आई, आई इज बेसिकली, अगर मैं यहां पर नोटेशंस लिखूं तो आई इज द रेंज ऑफ एमीटर। मतलब इसकी अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो ये अब 0 से लेकर आई करंट तक को ये क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। आईजी क्या माना है हमने यहां पर, आईजी इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो सिंपल सी बात, अगर मैं यहां से एक आई अमाउंट का करंट भेजूंगा तो मैंने क्या काम किया, आईजी अमाउंट का करंट इधर भेज दिया केसीएल के अकॉर्डिंग, तो आई माइनस आईजी करंट मेरा यहां पर जा रहा होगा, आई माइनस आईजी करंट मेरा यहां से फ्लो होता हो जाएगा। अब आई माइनस आईजी करंट जब मैंने यहां से फ्लो करा दिया तो वापस ये आई अमाउंट का करंट यहां से फ्लो होता हुआ आ रहा होगा, और ये हमारा सर्किट जो है ये सीधा सीधा किसी एक बैटरी से कनेक्टेड होगा, वही आई अमाउंट का करंट हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर
एक रूल यूज करूं, कौन सा रूल, कि जब कभी भी कोई भी चीज पैरेलल में हुआ करती है तो उस केस में वोल्टेज सेम रहती है। तो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज सेम रखूं तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज कितनी मिलेगी, यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिल जाएगी आई जी जी वोल्टेज मिलेगी, और ऊपर मुझे वोल्टेज कितनी मिल जाएगी, आई माइनस आई जी इंटू एस, ये मेरी वोल्टेज होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि आई जी जी मस्ट बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो अगर मुझे एस पता करना है कि कितने की शंटिंग लगानी है, तो शंटिंग लगाने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, आई माइनस आई जी। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर टू अ पर्टिकुलर रेंज। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर रेंज, 0 टू आई। अगर मुझे इसको 0 टू आई रेंज तक इंक्रीज करना है तो मुझे कितने कितने का यहाँ पर शंट वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एस की वैल्यू का जो शंट हम लगाएंगे वो कितने अमाउंट का लगेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि आप यहाँ पर एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन 1 माइनस आई जी अमाउंट का आप क्या लगाएंगे, शंट लगाएंगे। तो यही है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो सिंपल सी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर जो आई है, आपसे बोलेगा क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम 0 टू 50 एम्पियर तक आप मेजर करना चाहते हैं करंट को, तो कितने का शंट वायर लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन 1 माइनस आई जी। आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, you will able to determine the value of shunt which is to be placed across the galvanometer। तो अगर गैल्वेनोमीटर पहले सिर्फ 10 एम्पियर तक ही मेजर कर रहा था, तो अगर आप इसमें शंटिंग कर देंगे तो शंटिंग करने से आप 50 एम्पियर तक मेजर करना चाहते हैं उसी सेम गैल्वेनोमीटर से, तो आप शंट वायर को लगा दीजिए। तो यहां से आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि आपको कितने का शंट वायर लगाना है कि आप इसको 50 एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। तो पहले अगर आपका गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर मेजर कर रहा था, मतलब वो आपको आईजी की वैल्यू दी हुई है इनिशियली। दोबारा से ध्यान से सुनिए, इनिशियली गैल्वेनोमीटर कैन मेजर initially galvanometer of resistance, suppose एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, of resistance 50 ohm measures 5 ampere, and what we want to increase its range to 50 ampere। find the value of shunt। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दिस 5 एम्पियर विच इज गिवन टू यू इज द वैल्यू ऑफ आईजी की वैल्यू दे दी आपको 5। जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था वो करंट आपका गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करेगा, यानी कि आईजी की वैल्यू आपको दे दी 5। जी की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 50 ओम। एंड ऑब्वियसली आपको जो रेंज दी गई है, मतलब आप आई कितना चाहते हैं, आई आप चाहते हैं 50 एम्पियर मेजर करे, यानी कि ये वैल्यू आपको मिल गई आई की। तो आप सीधे सीधे आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी आप फॉर्मूला यूज कीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें, आप इस सर्किट को याद रखें कि जब कभी भी आपको गैल्वेनोमीटर को चेंज करना है एमीटर में, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लेस अ लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल। तो सिंपल सी बात है, आपको वहां से शंट मिल जाएगा। तो पहले जो भी गैल्वेनोमीटर की एक पर्टिकुलर रेंज होगी, उस रेंज से अगर आपको उसकी रेंज को बढ़ाना है कि आप चाहते हैं कि वो कितना एम्पियर रीड करे, 50 एम्पियर रीड करे, तो इनिशियली वो कितना रीड कर रहा था, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी आईजी की, कि पहले वो कितना रीड कर रहा था आईजी, मतलब यहाँ से 5 एम्पियर का ही करंट जाएगा। और यहाँ पर जब जैसे ही आप शंट प्लेस कर देंगे तो ये कितना मेजर करने लगेगा, 50 एम्पियर करंट मेजर करने लगेगा। So this is the method to convert galvanometer into ammeter. Next is how to convert galvanometer into voltmeter. So in each and every circuit, whenever we want to measure the volt potential drop across any resistance, a voltmeter is always connected in parallel with the पर्टिकुलर कंपोनेंट वेयर वी वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मैं इस आर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो क्या होगा, इसको मुझे वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, एंड दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th।
अब क्या होगा कि अगर मान लो मैं यहाँ से एक आई अमाउंट का करंट फ्लो कराऊंगा, दिस आई अमाउंट करंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हियर। तो ये आई अमाउंट का हमारा करंट जा रहा है, तो सपोज मेरा यहाँ पर आई डैश करंट चला गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, आई माइनस आई डैश करंट जाएगा। तो ये जो वोल्ट मीटर मुझे जो रीड करके देगा, वो वोल्ट मीटर मुझे कितना रीड करके देगा, आई डैश आर। और इसको रीड करके कितना देना चाहिए था, ये आई अमाउंट का करंट सारा का सारा इसी के थ्रू जाना चाहिए था। तो मैथमेटिकली जो मुझे रीडिंग चाहिए थी वो मुझे आई आर मिल रही है, और इतना ही इस वोल्ट मीटर को रीड करना चाहिए था। लेकिन वोल्ट मीटर भी एक कंडक्टिंग डिवाइस है, तो देयर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी वोल्ट मीटर ऑल्सो। द करंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स वोल्ट मीटर। अब अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आपकी जो वैल्यू होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको आइडियल वोल्ट मीटर बनाना है, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, व्हाट वी हैव फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस आप कितना कर दीजिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर आप कर देंगे। अगर मैं इस वोल्ट मीटर का, ये जो वोल्ट मीटर यहाँ पर कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस अगर मैं इनफाइनाइट कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, नो करंट विल फ्लो थ्रू वोल्ट मीटर। total current will flow through the will flow through the component of the circuit, component of the circuit through which potential is to be measured, potential is to be measured। ठीक, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट। तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना है कि अगर ये हमने पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल करंट विल पास थ्रू द वोल्ट मीटर, सो द करंट थ्रू द सर्किट एलिमेंट विल डिक्रीज। जो भी मेरा ये सर्किट एलिमेंट था, इसके थ्रू जो भी मेरा करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस विल डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पर क्या हो, इनफाइनाइट पर पहुंच जाए। तो आइडियल केस के लिए जो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, गैल्वेनोमीटर ही था जो हमारे करंट को डिटेक्ट कर रहा था, गैल्वेनोमीटर ही है जो हमारे पोटेंशियल ड्रॉप को भी रिप्रेजेंट मेजर करेगा। For this, what we have to do is we have to increase its resistance to a very high extent. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, what we have to do is we have to place a very high resistance in series। जैसे ही मैं very high resistance मतलब 5000 ओम का रेजिस्टेंस अगर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे के पूरे वोल्ट मीटर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, दैट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, विल बी मोर देन 5000। तो वो 5000 जो होगा उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट जाएगा। और अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट जाएगा तो ये मुझे क्या देगा, वेरी क्लोज वैल्यू देगा मुझे, किसके, वेरी क्लोज वैल्यू देगा मुझे किसके, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट अगर ये रीडिंग आनी चाहिए थी मैथमेटिकली, तो ये मुझे 9.9 वोल्ट रीडिंग दे रहा होगा। तो वोल्ट मीटर और एमीटर कभी भी मुझे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देते हैं, बट दे आर वेरी, दे गिव अस द रीडिंग व्हिच इज वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू। तो सिंपल सी बात, अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जब चेंज किया था तो वहां पर आपने शंट वायर लगाया था। यहाँ पर जब आप इसको इसको चेंज करना चाहेंगे किसमें, वोल्ट मीटर में, तो आपको इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आप क्या कीजिए, सीरीज में एक हाई अमाउंट का रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने बहुत ही हाई अमाउंट का क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो पहले जो भी मेरा ये गैल्वेनोमीटर था, अगर सिर्फ और सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता और यहाँ से कोई भी करंट जाएगा तो वो आईजी अमाउंट का ही करंट जाएगा, तो यहाँ पर जो मुझे इनिशियली जो रीडिंग मिल रही होगी वो कितनी मिल रही होगी, आईजीजी मिल रही होगी। मतलब इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर नहीं कर सकता आईजीजी से ज्यादा, क्योंकि ये पैरेलल में लगा होता है। तो जो भी आपको पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलेगा वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ मिलेगा। तो आपकी जो रेंज है वो रेंज तो सिर्फ आईजीजी हो गई। लेकिन अगर यही आपने क्या काम किया, यहाँ पर एक आर अमाउंट का अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आपका हो गया पूरा का पूरा वोल्ट मीटर। और ये अगर पूरा का पूरा वोल्ट मीटर हो गया,
तो अब ये जो V आपको मेजर करके देगा वो कितनी मेजर करके देगा? देखो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास होगा उस करंट को हम किससे रिप्रेजेंट किया करते हैं? IG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो IG G is the resistance of galvanometer plus IG into R. This will be the equation. मुझे यही R पता करना है कि कितना R प्लेस किया जाए। तो सिंपल सी बात, यहां से जो मुझे R मिलेगा, दिस R will be V minus IG G upon G upon IG. तो यहां पर R की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, दिस विल बी V upon IG minus of G. This will be the value of R to increase its range. तो ये V क्या है? V है 0 से V is the range of voltmeter हो जाएगी ये। मतलब जो पहले वोल्टमीटर मुझे, जो पहले गैल्वेनोमीटर मुझे जो रीडिंग दे रहा था वो कितनी दे रहा था? V is equal to IgG दे रहा था। अब वही वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई? V is equal to IgG plus IgR। मतलब ये इस रेंज तक का पोटेंशियल डिफरेंस अब मेजर कर पाएगा। जैसे पहले अगर इसकी वैल्यू अगर 10 वोल्ट थी, तो ऑब्वियस सी बात है अब तो आपने बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्लेस किया है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अब 10 वोल्ट की जगह मैं चाहता हूँ ये 1000 वोल्ट तक रीडिंग को रीड करके दे मुझे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्या किया, मैंने यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस प्लेस किया। मैं चाहता हूँ ये 10 वोल्ट का 100 वोल्ट ही रीड करे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आप चाहते हो ये 500 वोल्ट ही रीड करे, तो उसके अकॉर्डिंग आपके आर की वैल्यू चेंज होगी। तो V जो है, दिस V इज बेसिकली द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर विच इट कैन रीड, विच इट कैन रीड। और R क्या है? R इज द हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, या ऐसे भी लिख सकते हैं हाई रेजिस्टेंस टू इंक्रीज इट्स रेंज, to increase its range, high resistance used to increase its range. IG is the amount of current which flows through the galvanometer, current which flows through galvanometer. तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो भी करंट आपका फ्लो करेगा, दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ IG. तो दिस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल कन्वर्जन कि आप गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में चेंज करना है तो आपको पैरेलल में आपको लो रेजिस्टेंस प्लेस करना पड़ेगा, और यही अगर आपको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो हाई रेजिस्टेंस प्लेस करना पड़ेगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको एमीटर में कन्वर्जन करना है, एमीटर में कन्वर्जन करना है, तो ये जो भी आपका गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप कैसा रेजिस्टेंस लगाएंगे? लो रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो यही आपका जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह काम करने लगेगा। और अगर आपको इसको वोल्टमीटर में चेंज करना है, तो वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए आपका यही जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को आपको आर के साथ कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर ये जो आर है, दिस विल बी दी हाई रेजिस्टेंस आपको प्लेस करना है। और हाई रेजिस्टेंस मतलब वेरी हाई रेजिस्टेंस आपको प्लेस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें? आपका गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में चेंज हो जाएगा। तो दीज आर दी वेरी इजी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड voltmeter. So this is all regarding conversion of galvanometer into voltmeter and ammeter. Thank you so much for today. God bless you all.